Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are diving into factorization topic that many students find tricky, but I promise by the end of this video you will master it effortlessly. We will solve question number 2, review exercise 4, class 9 mathematics from our book, converting all parts step by steps. So grab your notebooks and let's get started. Let us tackle part 1, 4x cube plus 18x square minus 12x. The first rule of the factorization, always look for a common factor. Here is each term has a common factor 2 and x. Take the 2x common from each and every term. 2x. Take 2 common from the first term. First term 4 is the product of 2 multiply 2. When we take 2 common outside, 2 left inside. From the x cube, when we take x 1 common outside, x square left inside. Now tackle the second term. Second term 18. 18 is the product of 2 multiply 9. When we take 2 common from the 18, 9 left. X square, when we take 1x common, 1x left inside, minus sign. Then now from the third term, 12 is a product of 2 multiply 6. When we take 2 common from the 12, 6 left inside, and there is single x, it's common outside. Check the quadratic equation inside that bracket can be factorized or not. Let us check it doesn't factorize, it not split nicely. That's why our final factorized answer is this. Means हम इस middle term को मज़ीद factorize नहीं कर सकते. That's why this is a required answer. Part 2, x cube plus 64y cube. It's look like a sum of the cubes formula. And as we remember the sum of cube formula, a cube plus b cube is equal to a plus b bracket a square minus ab plus b square. Simple, what we have to do, we have to change this expression into a cube plus b cube form, find out the value of a and b, then substitute in the right hand side and we get our required factorization. Cubic formula में क्या करना है, simple, इसको cube की formation में पहले change करेंगे. x cube power cube बाहर निकालेंगे. 64y cube, 4 raised to power 3 becomes 64. आप check कर सकते हैं. 4 raised to power 3. We get 64. So rather than 64, we are going to write 4 raised to power 3. 4y, आप उसका क्यूब बाहर निकाल लें. By doing this stuff, we get the value of a is equal to x and b is equal to 4y. क्योंकि a और b क्यूब के फॉर्मूले में चेंज किया, a की वैल्यू गेट द x and b वैल्यू वी गेट 4y. अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी गेट आर रिक्वायर्ड आंसर. सब्सटीट्यूट a वैल्यू इज x and b वैल्यू इज 4y. Then a square means x square minus a means x multiply b 4y प्लस b स्क्वेयर 4y स्क्वेयर. p की वैल्यू क्या है 4y, तो 4y का स्क्वेयर. x प्लस 4y रिमेन सेम. ना x स्क्वेयर, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें मिडल टर्म को, माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वेयर, 4 मल्टीप्लाई 4 16y स्क्वेयर. This is our required answer. You can see that by using the formula it make our factorization very easier. When you see that there is the cubical power form, we are going to use the sum of cube formula, then write in the factorization form. Part 3, x cube y cube minus 8. Another cube, but this time it's a difference formula. Means there is a minus sign between that, so we are going to use that formula a cube minus b cube, which is equal to a minus b bracket a square plus ab plus b square. फार्मूला लर्न करने से, फार्मूला यूज़ करने से हमारी फैक्टराइजेशन बहुत इजी हो जाती है. नॉट टेक दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में चेंज करेंगे. x क्यूब y क्यूब एक्स वाई इसका क्यूब बाहर निकालेंगे, माइनस b का क्यूब हमें बनाना है 2 रेज टू पावर 3. 8 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, आप फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो 8 is the power 2 raised to power 3. So rather than 8, we are going to write 2 raised to power 3. By doing this step, we get a is equal to xy and b is equal to 2. Now substitute into the right hand side, we get our required answer. Simple. Substitute into right hand side, a value is xy. Rather than a, mention xy. Minus b value is 2. Mention 2. a square xy square bracket में plus a value is xy and b value is 2. Plus b square 2 square. In the next step, this bracket term remains same, xy minus 2. Take the square of, open it, x square y square. जब हम square open करते हैं तो power अंदर हर y multiply 2, it become 2xy. 2 square means 2 multiply 2 which is equal to 4. Simple. हमने क्या किया, हमारे पास माइनस था, क्यूबिकल
फॉर्मेशन के दरमियान, तो हमने डिफरेंस ऑफ क्यूब यूज़ किया, डिफरेंस ऑफ क्यूब का फार्मूला मेंशन किया, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन में चेंज किया, ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया और बी की वैल्यू को फाइंड आउट किया और उसको सब्सटीट्यूट कर दिया फैक्टराइजेशन प्रोसेस में, एंड देन वी गेट वी डिस्कस द पार्ट 4. We have to do the factorization process, and we know that in the factorization process the first rule either to check any common thing between all the terms. We have three terms, minus x square, minus 23x and minus 60. We can see that the minus is common in all these three terms, so take that minus sign common. It become, when we take minus common from the first term, it's become x square. When we take minus common from the second term, it become plus 23x, and when we take minus common from the third term, it become plus 60. Just taking the minus common make our calculation also easier. Now, in the next step, we have three terms, and we can see that we can do this question by the midterm breaking method. And the midterm breaking method is that take the coefficient of the first term. The coefficient of the first term is 1, and the constant of last term, which is 60. Multiply 1 multiply 60, we get 60. Make the factors of 60 which given us the middle term. 1 multiply 60, we didn't get the 23x. 2 multiply 30, we get 60, but 2 and 30 didn't provided as the middle term 23. 3 multiply 20, we get 60. 3 and 20 both are the factors which provided as the middle term 23x. So we are going to break the middle term into 3x plus 20x. First term remains same, x square. Second term 3x and 20x. This we done the middle term breaking by using the factors, plus last term remains same. Now in the next step, we have to take the common thing from the first and the second term. Take the common factor. X is the common factor between the first and the second term, so we take the x common outside. When we take the x common from the first term, we left x inside. When we take the x common from the second term, we left 3 inside. Plus sign. Now we have to take the common thing from the third and the fourth term. Like that pattern, we left x plus 3 inside. Take 20 common from the third and the fourth term. When we take 20 common from the third term, we left x inside. When we take 20 common from the 60, 60 is the product of where is 20? 3 multiply 20. When we take 20 common, 3 left inside, 3 left inside. In the next step, we see that x plus 3 is common in both terms. X plus 3 दोनों में common है. Take it common outside, x plus 3. When we take x plus 3 common from the first term, we left x inside. And when we take x plus 3 common from this term, we left 20 inside. Multiply the minus sign with these terms, minus x plus 3, x plus 20. This is our required answer by using. Now we solve fifth part, 2x square plus 7x plus 3. Factorization process first rules always check that any common factor between these three terms. There is nothing common in the first, second and third term. Now the second rule we are going to either it's a perfect square or the midterm breaking method. Perfect square के लिए चेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या perfect square बनती है. हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म perfect square नहीं बनती. So now next step we are going to check the midterm breaking method. In the midterm breaking method, we have to break the middle term. How? We are going to take the coefficient of the first term. What is the coefficient of the first term? Coefficient of first term is 2, and the constant of last term, which is 3. Multiply 2 multiply 3, we get 6. Make the factors of 6. 1 multiply 6, we get 6. 2 multiply 3, we get 6. Now take the pair factor which break the middle term. 1 and 6 break the middle term properly, and we get the 7x. Write the first term 2x square. Now break the middle term according to the pair 1x plus 6x plus last term. Next step, in the next step we have to take the x common from the first and the second term. When we take the x common from the first and second term, take x common from the first term, left 2x inside. 2 remains same, x square में से एक x common बाहर निकाल देंगे, 1x left inside. Plus from 1x when we take x common, 1 left inside. Plus now we have to take the common thing from the third and the fourth term. In like that pattern, we left 2x plus 1 inside. We take 3 common from the third and the fourth term. Take 3 common. When we take 3 common, 6 is the factor of 2 multiply 3. 2 multiply 3. When we take 3 to common, we left 2 inside. So it become 2 and x remains same. Plus 3 is the product of 3 multiply 1. 3 is the product of 3 multiply 1. When we take 3 common outside, 1 left inside. 1. Again, in the next step, we are going to take the 2x plus 1 common from both terms. Take 2x plus 1 common. When we take 2x plus common from this term, we left x inside. And when we take 2x plus 1 common from this term, 3 left inside.
This is our required answer in the fact. Now we discuss the sixth part of review exercise 4. ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास अगर क्यूबिकल पावर फॉर्म है तो हम उसको क्यूब के या सम ऑफ डिफरेंस में या सम ऑफ क्यूब्स में चेंज करते हैं और फैक्टराइज करते हैं. स्क्वेयर्स होते हैं तो हम उसको डिफरेंट मेथड से यूज़ करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर बनाते हैं, या हम उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हैं. बट जब हमारे पास पावर 4 होती है और हमारे पास टर्म्स होती है तो हम इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, और उसके ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. अब हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर की 2ab की मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय यूजिंग द सपोजिशन मेथड. सॉल्व करना शुरू करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को. x रेज़ टू पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में बनाते हैं, 2 इसकी पावर 2 बाहर निकाल देते हैं. प्लस सिमिलरली हमने पावर 2 निकालनी है, 8 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास लिमिटेड फॉर्म, हमने इसको स्क्वायर में चेंज कर लिया. इसी पे ही हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में तो चेंज कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab मिडिल टर्म होती है ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए. हमें मिडिल टर्म प्लस 2ab चाहिए जो हम इस पॉइंट पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऐसे स्प्लिट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 8 रेज़ टू पावर 2. दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द x रेज़ टू पावर 4th पावर की एक्सप्लेनेशन में होता है. जब पावर 4 होती है तो हम क्या करते हैं, पावर 2 में स्प्लिट करने के बाद मिडिल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. हमने मिडिल टर्म प्लस 2ab को ऐड करना है प्लस 2. a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 8. इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x स्क्वायर एंड 8. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. हम इसको क्लोज करके ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख देंगे. ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में. क्लोज इट इन टू राइट इन टू ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेशन. इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 वेयर ए वैल्यू इज एक्स स्क्वायर एंड बी वैल्यू इज 8. यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी की वैल्यू 8 है, तो इसको क्लोज करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर. एट दिस स्टेप हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कैन बी स्प्लिट इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी. ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मेशन में हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी. तो सो वी आर गोइंग टू चेंज इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज ऑलरेडी इन द ए स्क्वायर फॉर्म बिकॉज ए वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 8. पावर 2 में इसकी पावर 2 बाहर निकालनी है, इसकी पावर 2 निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 16 क्या है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16. तो रैदर देन 16 वी आर गोइंग टू राइट 4x, हम इसकी पावर 2 बाहर निकाल देंगे. बाय डूइंग दिस स्टफ वी गेट द वैल्यू ऑफ a एक्स स्क्वायर प्लस 8 एंड b वैल्यू इज 4x. हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज कर दिया जहाँ वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 एंड b वैल्यू इज 4x. नाउ सब्स्टिट्यूट इनटू द राइट हैंड साइड एंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर सिंपली. वेयर a की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x. अगेन ए की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस साइन एंड रेदर देन बी वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 4x. दिस इज डन, वी डन द फैक्टराइजेशन. जस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू राइट इन टू द अरेंजमेंट ऑर्डर, राइट द मिडल टर्म इन द मिडल. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8. This is our required answer. Now let's tackle part 7, x raised to power 4 plus 2x square plus 9. As same as the previous part, हम क्या करेंगे कि हमारे पास raised to power 4 है, मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको चेंज करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, और क्लॉज फॉर्म में लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर की क्लॉज फॉर्म में. जिसमें पावर 4 होती है हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाना होता है, और प्लस 2ab माइनस 2ab की फॉर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर. हमारे पास ए स्क्वायर की फॉर्म कौन सी है, ये ए स्क्वायर बनेगा. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम सेपरेट साइड पे कर देंगे सेकंड टर्म को. थर्ड टर्म 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर बनता है तो हम इसको b का स्क्वायर बनाएंगे, और फिर 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9 को मेंशन करेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर. ये हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्मेशन बना दी. अब हमें मिडिल टर्म 2ab चाहिए ताकि हम इसको क्लोज करके लिख सकें. हमारे पास मिडिल टर्म 2ab नहीं है तो हम 2ab को खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एट दिस स्टेप इसका स्क्वायर लेते हैं प्लस 3 स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या है प्लस 2, ए वैल्यू इज एक्स स्क्वायर एंड बी वैल्यू इज 3. ऐड किया और इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3. और ये वाली टर्म को हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया था, इसको हम दोबारा लिख देंगे 2x स्क्वायर. नो एट दैट स्टेप हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको हम क्लोज करके लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में
ए स्केयर वेयर ए स्केयर वैल्यू इज एक्स स्केयर, बी वैल्यू इज 3, क्लोज करके इसको लिख दिया। इस पूरी टर्म को हमने क्लोज करके ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेशन में क्लोज करके लिख दिया। माइनस साइन 2 × 3 बिकम 6 एक्स स्केयर एंड प्लस 2 एक्स स्केयर, जो हमारी रिमेनिंग टर्म थी। नेक्स्ट स्टेप, दिस बिकम एक्स स्केयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 6 प्लस 2 वी गेट माइनस 4 एक्स स्क्वेयर। जब हमारे पास पावर 4 के क्वेश्चन होते हैं उसमें पहले तो हम a प्लस बी स्केयर की क्लोज फॉर्म बनाते हैं, उसकी मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। आफ्टर क्लोज मेकिंग द क्लोज फॉर्म हमारे पास फॉर्मेशन बन जाती है a स्केयर माइनस बी स्केयर की। वी गेट द फॉर्मेशन a स्केयर माइनस बी स्केयर, उसको हम स्प्लिट करके बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की प्रोडक्ट में लिख देते हैं। सिर्फ ये 2 स्टेप करते हैं हम पावर 4 में, सिर्फ एक पहले a प्लस बी स्केयर के फॉर्मूले को क्लोज फॉर्म में बनाते हैं, इसकी मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू चेंज इनटू a स्केयर माइनस बी स्केयर। a स्केयर माइनस बी स्केयर में चेंज करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ऑलरेडी a स्केयर में एक्स स्केयर प्लस 3 का स्क्वायर ऑलरेडी a स्केयर है, वेयर a वैल्यूज एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस 4 एक्स स्केयर को हमने b स्केयर में चेंज करना है, 2 एक्स स्केयर मेंशन कर देंगे, स्क्वायर बाय निकालना 4 इज द 2 रेज टू पावर 2 और एक्स का स्क्वायर बाय निकाल दिया, हमारे पास 2x, वेयर a वैल्यू इज एक्स स्केयर प्लस 3 एंड b वैल्यू इज 2x। इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट हैंड साइड में वी गेट अ रिक्वायर्ड आंसर। राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं, a वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स स्केयर प्लस 3 माइनस साइन b वैल्यू इज 2x ब्रैकेट a वैल्यू इज एक्स स्केयर प्लस 3 प्लस साइन एंड b वैल्यू इज 2x। दिस इज आर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। जस्ट राइट द आंसर इन द अरेंजमेंट ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 3 एंड एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3। आप बस मिडल ऑर्डर को मिडल में ले आएंगे एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। 8 part look like a monster question, but we are going to solve it step by step in a very easy method. How? First step is to pair the factors. इनको पेयर्स बनाना होता है। पेयर किस फॉर्मेशन में करते हैं हम देख लेते हैं कि हम किसको पेयर करें हमारे पास सेम वर्ड्स मिले। 3 + 5 we get 8 and 6 + 4 10। सेम पेयर्स नहीं बन रहे, हम क्या पेयर बनाएंगे 3 and 6 9, 3 और 6 को ऐड करें वी गेट 9, 4 और 5 को ऐड करें तो वी गेट 9। तो हम इनको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑर्डर में, जो दोनों में 9 दे रहे हैं 3 and 6 वी गेट 9। इसको राइट लिख कर देते हैं x + 3 ब्रैकेट x + 6, जस्ट ऑर्डर द पेयर। देन राइट x + 4 मल्टीप्लाई x + 5 माइनस 360। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 पेयर एंड थर्ड एंड फोर्थ पेयर। आप मल्टीप्लिकेशन कर दें प्रोडक्ट 1 and 2 के दरमियान, 3rd and 4 के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x × x बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x × x वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 × x बिकम प्लस 3x। पूरी टर्म पहले x से मल्टीप्लाई होगी, देन कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई विद 6। x × 6 6x एंड प्लस 6 3 6 18। नाउ ब्रैकेट थर्ड और फोर्थ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x एक्स स्क्वायर 4 × x 4x। अब पूरी टर्म प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, x × 5 बिकम 5x प्लस 4 × 5 प्लस 20 माइनस 360। ना एट दिस स्टेप मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हमने पेयर क्यों अरेंज किया। हमने पेयर्स इसलिए अरेंज किए, देखिए 6 + 3x वी गेट द 9x, 4x + 5x वी गेट द 9x। हमने सेम टर्म बनाने के लिए पेयर्स को अरेंज किया, सो मेक आवर कैलकुलेशन ईजियर। इसको नेक्स्ट स्टेप को करते हैं, वी गेट एक्स स्क्वायर 3 + 6x we get 9x plus 18 x square 4x plus 5x we get 9x plus 20 minus 360। पेयर हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी ये जो टर्म्स है ना वो सेम हो जाए, ताकि इसको हम सपोज करके अपनी इस लॉन्ग फैक्टराइजेशन को ईजियर कर सकें। दैट्स वाई पेयर हम इस फॉर्मेशन में लेते हैं कि ऐड करके 2 पेयर्स को ऐड करके एक जैसी वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे 3 + 6 को ऐड करके वी गेट द 9 और 4 + 5 को वी गेट 9। दैट्स वाई वी अरेंज द पेयर अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। आफ्टर अरेंजिंग टू आर रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। After doing the multiplication we get these x square plus 9x, x square plus 9x. At this step हमारी फैक्टराइजेशन देखिए, इस 3 टर्म्स को 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना इट्स अ लॉन्ग मेथड। इसको शॉर्ट करने के लिए और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सपोज लेट y = x square plus 9x। दोनों सेम है, हमने इनको सपोज कर लेना है x square plus 9x के ऊपर के, और इक्वेशन में जहाँ जहाँ x square plus 9x है वी हैव टू सब्सटीट्यूट y देयर। हमने सपोज किया तो y square plus 9x = y plus 18 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x square plus 9 की जगह हम y सब्सटीट्यूट करेंगे, y plus 20 minus 360। Now it's easy to multiply these two products after the supposition. Now multiply these, y × y we get y square
देन 18 मल्टीप्लाई वाई वी गेट 18y। पूरी टर्म को पहले y से, फिर पूरी टर्म को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। y मल्टीप्लाई प्लस 20 वी गेट 20y एंड 18 मल्टीप्लाई 20, 18 मल्टीप्लाई 20 वी गेट 360, 360 minus 360 from the start of the question, plus 360 minus 360 cut. In the next step, y square 18 plus 20. Now we have to do the factorization of this. Just take the y common. When we take y common, we left one y left inside. इस y square में से एक y common लेंगे, one y left inside, plus 38 में से one y common लेंगे, we left 38 inside. After doing the factorization, just substitute the value y which we suppose. हमने जो वैल्यू सपोज की थी उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। y की वैल्यू सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x को दोबारा सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगेन y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। आफ्टर सब्सटीट्यूशन द y वैल्यू, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर, बट वन स्टेप मोर हम देख रहे हैं कि पहली प्रोडक्ट में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में से वी कैन टेक द x कॉमन, तो पहली टर्म में से आप x कॉमन बाहर निकाल लें। फर्स्ट टर्म में से व्हेन वी टेक x कॉमन फ्रॉम द x स्क्वायर वी लेफ्ट x इनसाइड, और 9x में से आप x कॉमन लेंगे वी लेफ्ट 9 इनसाइड। द रेस्ट ऑफ टर्म रिमेन सेम, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अब इसको मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर प्रोसेस देयर। दिस इज आर रिक्वायर्ड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 9 पार्ट. It's very easy and simple question. Just substitute the value of x square plus 6x is equal to y for the factorization. ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास सेम है x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x, एक से 3, 2 से ज़्यादा टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई करना, फैक्टराइजेशन करना, इट्स अ डिफिकल्ट. जब ऐसे मेथड में जब डिफिकल्ट होता है हमारे पास, तो हम सपोज कर लेते हैं एक जैसी चीज़ों को. लेट वी आर गोइंग टू टेक दैट लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y रेदर देन x स्क्वायर प्लस 6x. y सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, x स्क्वायर 6x की जगह y सब्सटीट्यूट किया प्लस 3. अगेन x स्क्वायर प्लस 6x की जगह y सब्सटीट्यूट करेंगे, y माइनस 9 प्लस 36. नौ मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई y, y स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई y, 3y. पहले वाली ब्रैकेट की तमाम टर्म्स दूसरी वाली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती हैं. देन बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ब्रैकेट की पूरी टर्म्स सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगी. y मल्टीप्लाई माइनस 9 बिकम माइनस 9y, प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9 बिकम माइनस 27 और प्लस 36 रिमेन सेम. नाउ y के रिमेन सेम, प्लस 3 माइनस 9 plus 3 minus 9 we get minus 6y, minus 27 plus 36 we get plus 9. We have 3 terms. 3 terms में आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो या मिड टर्म ब्रेकिंग करते हो. आप इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो एट दिस पॉइंट, और मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हो. फॉर द फैक्टराइजेशन मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हम परफेक्ट स्क्वायर से मिड टर्म ब्रेकिंग से कैसे करेंगे? मिड टर्म ब्रेकिंग से हम ऐसे करेंगे कि हम पहले वाली टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मल्टीप्लाई 9 वी गेट 9. 9 के फैक्टर्स जो हमें लेंगे, जो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे. 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 3 ज़ा 9 मीन्स 3 and 3 ब्रेक द मिडिल टर्म माइनस 6y. हमें माइनस 6y चाहिए. मिडिल टर्म के साइन को भी आप कंपल्सरी देखते हो, तो वी गेट माइनस 3 वी गेट माइनस 6y. फर्स्ट टर्म रिमेन सेम y स्क्वायर. नाउ वी ब्रेक द मिडिल टर्म माइनस 6y माइनस 3y प्लस 9. फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म टेक द y कॉमन. फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन ले लेते हैं. y वी टेक y कॉमन, वी लेफ्ट y स्क्वायर में से व्हेन वी टेक y 1 कॉमन वी लेफ्ट 1 y इनसाइड, माइनस व्हेन वी टेक y कॉमन फ्रॉम द सेकंड टर्म वी लेफ्ट 3 इनसाइड. नाउ वी हैव टू टेक द कॉमन थिंग फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म. इन लाइक दैट पैटर्न वी लेफ्ट y माइनस 3 इनसाइड. टेक माइनस 3 कॉमन, वी टेक माइनस 3 कॉमन फ्रॉम द थर्ड टर्म वी लेफ्ट y इनसाइड. नेगेटिव कॉमन एंड 3 कॉमन, इट बिकम पॉजिटिव y. 9 is the product of 3 multiply 3. 3 multiply 3. When we take 3 common, 3 left inside. And it's a rule in math, when we take the minus common outside or multiply inside the bracket, it become negative. It change the sign. Positive plus कैसे होता है? Plus is the product of minus multiply minus. When we take 1 minus common outside, 1 minus left inside, bracket side. Again the next step, we're going to take y minus 3 common. Y minus 3 common from both. When we take y minus 3 common from both, from the first term we left y inside, and from the second term we left minus 3 side. And y minus 3, we can write y minus 3 square. Now at this step, just substitute the value of y, which we suppose at the first, we get a required answer. But you can solve from this by using the perfect square method. आप इसको perfect square method से भी solve करते हो. मैं इसी step से आपको perfect square method से भी solve करना सिखाती हूँ. y square minus 6y plus 9. Her going to solve it by the
परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में चेंज करके इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्लोज कर देते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, माइनस साइन है तो वी आर गोइंग टू चेंज इनटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में क्लोज हो जाएगा। चेंज करते हैं, हमें पहले a की टर्म चाहिए, y ऑलरेडी इन द स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस मैं हमेशा पहली और आखिरी टर्म को देखती हूँ परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए, मिडिल टर्म खुद ब खुद बन जाती है। लास्ट टर्म इज 3 स्क्वायर विच इज़ 9, वी गेट a इज इक्वल टू वाई एंड b इज इक्वल टू 3। नाउ हमें मिडिल टर्म चाहिए माइनस 2ab, माइनस 2, a वैल्यू हमारे पास क्या है y, b वैल्यू क्या है हमारे पास 3। आप इसको बैक चेक करें कि आपने अकॉर्डिंग टू एक्यूरेटली स्प्लिट किया, -2 × 3 बिकम -6y, मीन्स हमने इस फॉर्मूले को परफेक्ट स्क्वायर के माइनस के फॉर्मूले में परफेक्टली स्प्लिट किया। नाउ वी कैन राइट इनटू द क्लोज फॉर्म a माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेशन में स्प्लिट करके हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे, वेयर इज a वैल्यू इज y माइनस साइन b वैल्यू 3 y माइनस 3 स्क्वायर। हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से करें, वी गेट y माइनस 3 रेज़ टू पावर स्क्वायर। इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड वी गेट द सेम आंसर। आप पेपर में इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हो। It's your decision either to use a midterm breaking method or either the perfect square method for the factorization of this part. Now substitute the value of y at which we suppose at the first x square plus 6x. Substitute the value y x square plus 6x minus 3 square. This is our required answer. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.